A very good evening, ladies and gentlemen. Once again, we are back with our prestigious Construction Times BAM Awards 2022, honoring the best builders, architects, and material who reshaped the real estate sector practices in India. On this significant occasion, it's our proud privilege to welcome today's chief guest, Shri Eknath Shinde, Honorable Chief Minister of Maharashtra, to grace the evening. We also extend our warm welcome to our guest of honor, Shri Rahul Shewale and Shri Shrikant Shinde, Honorable Members of Parliament, Government of India. We also welcome all our winners and congratulate for all your distinguished achievements in the difficult conditions. We are really proud to present special mementos to those who contributed in transforming the real estate sector. We wish to salute the entire real estate industry for these efforts. We would like to specially thank and welcome our jury members who had entrusted the task to select the best out of the best, which was really very tough. We have just concluded one-day conferences Mumbai Global Metropolitan Region Summit, which deliberated, discussed and sought out solutions for the development plan MMR region. A white paper on the outcomes and measures discussed will be presented to the Honorable Chief Minister today. And a special supplement on the conference will be released in a fortnight time to be handed over to the Honorable Chief Minister. Keeping this spirit alive, we sincerely look forward to your cooperation and support for our magazines Construction Times and Equipment Times in our future endeavors. We once again welcome you all to Construction Times Award BAM Awards 2022. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this special evening. Welcome to Construction Times BAM Awards 2022. Although it has been said, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. This evening, that road culminates on this podium with successful and winning companies and personalities being honored for their best performances. We would like to give a special welcome to our event partners, and I may now request Mr. Ramamurthy Mayavan, Editor-in-Chief Construction Times and Equipment Times, Mr. Shantanu Kulkarni, to please give the bouquet of flowers to Chief Guest Shri Eknath Shinde, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Guest of Honor Shri Rahul Shewale, Honorable Member of Parliament, Dr. Shrikant Shinde, Member of Parliament, Mr. SVR Srinivas, IAS Commissioner, MMRDA. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? Thank you so much, all the gentlemen. Now we would request Shri Rahul Shewale, Dr. Shrikant Shinde, Mr. Ramamurthy and Mr. Jitendra Mehta to hand over the white paper of the conference, which was concluded today evening, to the Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for this? Can we have Mr. Srinivas to give us the overview of the conference? Thank you. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Ji Shinde sir, उपस्थित Honorable MPs, Shri Shrikant Ji Shinde and Shri Rahul Ji Shewale, and my senior colleagues, SIDCO, VC and MD, Dr. Mukherjee, and BSD collector and organizers from Construction Magazine. सर, आज हमने पूरा दिन का एक मंथन का एक शिविर रखा था. उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें इंडस्ट्री के लोग हैं, प्लस एकेडमिया के लोग हैं. सर, IIT फ्रॉम तिरुपति, IIT मुंबई, ऑल द पीपल आर देयर इन इंजीनियरिंग सेक्शन. थर्ड इज़ ऑल्सो रियल एस्टेट के जो भी हैं, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी सर सिडको और MMRDA ने भी इसमें कुछ प्रेजेंटेशन दिया था. उसमें 3 ब्रॉड थीम थे. नंबर 1, हाउ टू मेक मुंबई ए वर्ल्ड क्लास सिटी. दैट इज़ आवर ड्रीम. एक्चुअली दैट वाज मॉर्निंग का एक बड़ा सेशन था. उसके अलावा सर आपने जो ऑर्डर दिया था कि मुंबई के शहर के रोड्स का कॉन्क्रीटाइजेशन कैसा करने का, उसके बारे में एक डिस्कशन था. नया टेक्नोलॉजी जो है UTWT वगैरह, उनके बारे में डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन हुई सर दिन भर. और आफ्टरनून सेशन में और 2 मेजर हमने थीम्स लिया था. वो सर एक मुंबई का स्लम फ्री सिटी का कैसा ड्रीम रियलाइज़ करने का, उसमें एक पैनल डिस्कशन था. इसमें धारावी के बारे में खास करके ये अपना जो अभी नया गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था अबाउट 15 दिन पहले, नया GRB निकल गया, उसके बारे में धारावी को कैसा रीडेवलप करने का, बिकॉज दिस बाय फॉर द लार्जेस्ट अर्बन रिन्यूअल स्कीम इन इंडियन हिस्ट्री.
उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हुई, उसमें कुछ अच्छे सुझाव भी आए थे। एंड लास्ट सर अभी एक डिस्कशन था रिगार्डिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, उसके बारे में सिडको ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एक दिया था। एंड या इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू मिस्टर मुखर्जी अबाउट दैट। एंड फाइनली ऑफ कोर्स वी आल्सो हैड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मुंबई में, जो एज चेयरमैन सर यू हैव गिवन अस सम डायरेक्शंस। मुंबई सिटी और मुंबई एमएमआर रीजन को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में इंडिया का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्रीम है उस और विजन है उसके बारे में, और महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करते हुए अपने को एमएमआर को जो 50% का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पार्ट कैसा लाने का उसके बारे में डिस्कशन हुई। खास करके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं राइट नाउ सर आई वाज टेलिंग देम कि अबाउट मोर देन 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स का भी अभी शुरू करेंगे और चालू हैं। सो उसका 2 साल के बाद मुंबई कैसा दिखेगा उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई। और सर आई थिंक इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, and I would like to thank all of you, and we are sir very eager to listen to Honorable Chief Minister, and I request Honorable Chief Minister to please address the gathering. Please welcome sir. कन्स्ट्रक्शन टाइम्स बाम अवॉर्ड 2022 आज याचं आयोजन या ठिकाणी आपण केलं आहे। या कार्यक्रमाला उपस्थित राममूर्ती एडिटर इन चीफ कन्स्ट्रक्शन टाइम्स आणि MMRDAचे श्रीनिवासन, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, सिडकोचे MD संजय मुखर्जी, आपल्या जिल्हाधिकारी मॅडम, सगळेच उपस्थित मान्यवर, मी सगळ्यांनाच खूप खूप मनापासून आपलं अभिनंदन करतो। सगळ्यांना आपले आमदार कालिदासजी कोळंबकर पण आहेत, सगळेच उपस्थित मान्यवर, सगळ्यात आधी मी राहुल शेवाळे यांचं अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही आणि तुमच्याबरोबर श्रीकांत पण आहे, आपले लोकसभेतील आपले शिवसेनेचे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे गटनेते आहेत ते। मुंबईसारख्या महानगराच्या विकासावर ही कॉन्फरन्स जी आहे हा पहिला संवाद आहे की मुंबई महानगर जे आहे त्याच्या विकासावर डेव्हलपमेंटवर हा एक चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी परिसंवादाचा आयोजित केलेला आहे। आज उन सभी जो बिल्डर है, जो आर्किटेक्ट है, सभी लोग इसमें जो जिन्होंने मुंबई को एक आकार दिया है, इस अवसर पे सभी लोगों को मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। जो एक्सपर्ट्स है, जो डेवलपर है, ये सभी लोग जो है ये मुंबई में पले बढ़े हैं हम लोग, लेकिन मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी शहर है। बरसों से लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं। मुंबई ने हम सभी लोगों का पालन पोषण किया है और आज समय आ गया है कि मुंबई के लिए वास्तव में कुछ करना चाहिए। मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम, इट इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। एज वी ऑल नो, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमिक capital of India, and it is an international trade city. It is definitely one of the biggest cities in the world, but our aim is make it the best city in the world, and the time is now. अब इस समय आ गया है। चर्चा होती है सब कुछ, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है। अभी आप लोगों ने इसका आयोजन किया है, इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम लोग कर पाएंगे। आज मुंबई के लिए वास्तव में समय अच्छा आया है। मुंबई के विकास में जैसे आप सभी लोगों का योगदान है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी नेता हैं, वैसे ये मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। कंस्ट्रक्शन टाइम जैसी पत्रिका जो है पिछले कुछ वर्षों से लगातार निर्माण क्षेत्र और शहरी विकास के बारे में लिख रही है, और एक अच्छी बात है न्यूज़ छापना वगैरह ठीक है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल शहर के बारे में या ऐसे कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे कुछ हम लोग करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी की चर्चा होती है और उस शहर को फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसलिए ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, पहल आपने किया है, इसलिए कंस्ट्रक्शन टाइम्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज जी काय परिषद आपण ठेवली आहे उसमें मैं देख रहा था कि रास्तों के लिए, रस्त्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान आहे, नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, झोपडपट्टी मुक्त मुंबई, स्लम फ्री सिटी, धारावी पुनर्विकास,
शहरी दड़न वड़न, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग होती है, तकलीफ होती है लोगों को, तो मुंबई कॉरपोरेशन उसके लिए काम कर रही है, MMRDA कर रही है, सरकार भी कर रही है। रियल इस्टेट क्षेत्र जो है उनके भी कई मुद्दे हैं। मैं भी कुछ वर्षों तक अभी पिछले समय में मैं UD मिनिस्टर रहा हूँ। किसी भी राजनीति और पार्टी संगठन के बारे में मैं इस व्यासपीठ से, इस मंच से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है मुंबई के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। सभी लोगों का एक कलेक्टिव सामूहिक अप्रोच होने की आवश्यकता है, और यही सरकार की भी दृष्टिकोण वही है, सरकार का भी सोचना वही है। हमने हमेशा मुंबई के टुकड़े टुकड़े को मुद्दों में देखा है, मतलब कोई MMRDA है, MSRDC है, मुंबई कॉरपोरेशन है, म्हाडा है, या कोई डेवलपमेंट है, लेकिन हम लोगों ने कभी साथ में एक साथ जैसे इंटीग्रेटेड ये मुंबई का डेवलपमेंट जो है एक करने की आवश्यकता है, एक इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो है, मुंबई वित्तीय राजधानी, इस शहर में देश भर के लोग जो है रोजाना आते हैं। मुंबई की जो हमारी एक लिमिटेशन है, उसमें सुविधा जो देना है इसके ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि सब लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई सबको संभालती है, और इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो विल पावर है, ये जो इच्छा शक्ति जो है, वो होने के बावजूद भी उसका असर दिखाई नहीं पड़ता, कम दिखाई पड़ता। इसलिए हमें काम करना है, और ट्रैफिक का कंजेशन हो और बाकी सब हो, इसके ऊपर हम लोग वी आर वर्किंग ऑन मैनी बिग प्रोजेक्ट नाउ। अभी यहाँ पर हमारे MMRDA के श्रीनिवासन बैठे, वो मेट्रो का काम कर रहे हैं। हमारे बांद्रा वर्ली सी लिंक MSRDC कर रही है। सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड मेरे ख्याल से MMRDA कर रही है। ईस्टर्न फ्रीवे ठाणे से लेके घोड़बंदर तक लेके जाएंगे, एलिवेटेड लेके जाएंगे। तो सर्विस रोड जो है उसको एलिवेटेड, पूरा फाउंटेन जो आगे घोड़बंदर जो अहमदाबाद रोड को जाता है, जो गडकरी साहब एक नया फ्लाईओवर बना रहे, तो उसको कनेक्ट कर दो तो सीधा बाईपास हो जाएगा। तो ये ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, कोस्टल हाईवे जो है, या वेस्टर्न का जो ट्रैफिक कम करना है, डीकंजेस्ट करना है। मुंबई में मेट्रो कॉरिडोर का भी काम चालू है, इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये सब इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही बारीकी से ध्यान दे रहा है, क्योंकि जैसे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे 2014 से 19 तक, उन्होंने मेट्रो का काम शुरू किया। 337 किलोमीटर, 337 किलोमीटर का मेट्रो का पूरा, बराबर श्रीनिवासन, बराबर है ना? तो ये कंप्लीट 2026 तक पूरा हो जाएगा। और बीच में कुछ प्रॉब्लम आए थे, हड्डल आए थे, हम लोगों ने अभी मेट्रो 3 का भी निर्णय ले लिया है। और ये 337 किलोमीटर का रोड जो मेट्रो बनता है, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से लाखों व्हीकल, हम कुछ ऐसा सर्वे किया था, 19 लाख मेट्रो 3 में 19 लाख, और 40 लाख प्राइवेट व्हीकल रोड से कम हो जाएंगे, वो लोग मेट्रो में बैठेंगे जाके, तो ट्रैफिक कम हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। हमें ये मेट्रो बहुत ही सभी लोगों को बहुत रिलीफ और राहत देने वाला प्रकल्प है। आने वाले समय में आपको MMR क्षेत्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब बड़े प्रोजेक्ट है। ये CM वार रूम में हम लोग ने लिए है, ये DCM साहब और मैं और हमारे बाकी अधिकारी जो है, ये पूरा एक एक हफ्ते में उसको रिव्यू ले रहे, मॉनिटर कर रहे, किधर प्रॉब्लम है, क्या है। इसलिए ये इन टाइम ने बिफोर टाइम ये सब प्रोजेक्ट करने का हमारा सरकार का सोचना है, निर्णय लेना है। और मुंबई के जो खड्डे हैं उसके ऊपर भी आपका चर्चा हुआ है। मुंबई में, ये मुंबई कितनी बड़ी है, हर साल देखो मुंबई में ये मीडिया के लोग बहुत खड्डे का फोटो दिखाते हैं, उधर प्रिंट मीडिया और ये लोग सब बोले 2800 खड्डे हैं। फिर बाद में हम लोग कमिश्नर को बोलते हैं भाई ये उसको बुझाओ, फिर 2000 खड्डे रहते, 800 बुझ गए, लेकिन वापस वो लोग फोटो दिखाते हैं, बाहर आ गया उसमें से, क्योंकि बारिश में कितना भी कुछ भी डांबर डालो तो प्रॉब्लम है ये। और इसलिए ये कमिश्नर चहल जी को मैंने बुलाया था, बोले भैया ये अभी एक काम, ये कभी तो बंद करो ये खड्डे बिड्डे का काम, पैसे का प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं है। बोले फिर क्या हुआ है? तो बोले हम लोग हर साल 50-60 किलोमीटर के रोड लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 किलोमीटर। मैंने कहा भैया पैसे है तो
ज़्यादा लो ना, तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आदेश दे दो। मैं बोला आदेश क्या है यार, ये पैसे लोगों के हैं तो लोगों के लिए खर्च करना मांगता है ना, हर साल क्यों खड्डे में डालते लोगों को। तो इस साल 450 किलोमीटर के रोड के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, उसका टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया। मैंने कहा कि बड़ी अच्छी कंपनियां दो, ले लो, रेप्यूटेड कंपनी लो। बड़ी बड़ी कंपनियां मुंबई कारपोरेशन के इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मैं बोले ये कैसी बात है, इसको चेंज करो। अच्छी कंपनियां जो है ये क्वालिटी काम करने वाले लोग और टाइम के वक्त से पहले काम करने वाली कंपनियां इसमें ले लो। तो वो अभी टेंडर निकले हैं और मैंने कहा कि बाकी कितने बचे हैं, बोले और 450 किलोमीटर है। तो उसको भी अभी मार्च में 450 किलोमीटर के भी टेंडर निकलेंगे, मतलब 100% मुंबई के रोड कंक्रीट के हो गए। कम से कम अभी 5,500 करोड़ के रोड के टेंडर हो गए और बाकी उतने ही हो जाएगा आगे। और मेट्रो का काम शुरू है, मेट्रो 3 का भी उसमें से कुछ प्रॉब्लम था, उसको ये किया है। ईस्टर्न फ्रीवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न एक्सप्रेस, उसमें भी कुछ करना है। एक एक्सेस कंट्रोल भी रोड करना आपने, तो डेडिकेटेड एक कॉरिडोर हो जाएगा। 0 सिग्नल, जिसको जल्दी जाना है डायरेक्ट उधर, वो बीच में किधर रुकेगा नहीं, वो सीधा चले जाएगा। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगी। कोस्टल रोड होने तक ये रिलीफ देने का भी काम हमारा शुरू है। झूठा वादा वगैरह मैं देता नहीं, वो करना है तो करना है। और ये सरकार टारगेट ओरिएंटेड है। जैसे टारगेट हमारा था 3 महीने पहले, वो अचीव हमने कर दिया। तो अभी लोगों की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि ये सरकार बदली है, काम करने वाले लोग हैं। जैसे देवेंद्र जी अभी DCM है और मैं CM हूँ, और उनको भी एक्सपीरियंस है 5 साल का, उसका भी फ़ायदा सरकार के काम में हो रहा है। मैं खास करके यहाँ पर कहूँगा कि जो आवास योजना जो है उसमें जैसे घर लेना है, हर एक का सपना होता है। तो अभी यहाँ का जो मुंबई का नागरिक है वो जाता है किधर, नाला सोपारा, विरार, इधर जाता है बदलापुर, वांगनी। लेकिन मुंबई में क्यों गया वहाँ पर, क्योंकि मुंबई में आप जो रियल इस्टेट सेक्टर है, थोड़े पैसे कम करो, अफोर्डेबल हाउसिंग करो, आपको तो हम लोग सहूलियत देने वाले हैं। और जो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, मैं अभी गणपति और नवरात्रि में मुंबई में गया था, कई वहाँ पर लोग, डेलीगेशन मुझे मिला, महिलाएं मिली, वहाँ के लोग मिले। 10 साल से हमारा काम रुका पड़ा है, 15 साल से काम रुका पड़ा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी रीडेवलपमेंट स्कीम है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। कानून में चेंज करना है, बदलाव करना है, वो भी हम करेंगे। जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम की थी, प्रीमियम में सहूलियत दी थी, तभी कई लोग बोलते थे अरे भैया ये डेवलपर को आप दोगे तो फिर दूसरे लोग आएंगे, सीमेंट इंडस्ट्री आएगी, स्टील इंडस्ट्री आएगी। मैं बोला वो तो इनके ऊपर ही है ना, इनका काम बंद पड़ेगा तो वो भी बंद हो जाएगा, तो इनको देने की आवश्यकता है। तभी उस वक्त भी कई लोगों ने परचेस किया, घर लिया, उसमें डेवलपर को भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला और लोगों को उसका फ़ायदा। स्टैम्प ड्यूटी भी मेरे ख्याल से डेवलपर लोगों ने भरी थी पूरी 100%। हमारा एक कंडीशन था कि स्टैम्प ड्यूटी लोगों को नहीं भरने लगाओ, आप भरो, तो भरा तो वो लोग ने, तो वो भी फ़ायदा हो गया। और इसमें यूनिफाइड DCPR जो है, कई शहरों में अलग अलग DC रूल थे और अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते थे वहाँ के, और लोगों को तकलीफ हो जाती थी। इसलिए हम लोगों ने यूनिफाइड DCPR किया। यूनिफाइड DCPR क्यों किया कि रियल इस्टेट जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें कई लोग काम करते हैं। और मैं कहता हूँ हमेशा, रियल इस्टेट सेक्टर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद ये बहुत बड़ा सेक्टर है और more than 200 allied industries are dependent on this sector. We give many facilities to boost the real estate sector. That time we have applied unified DCPR and it has definitely benefited this sector. Even other states are also studying our unified DCPR scheme. We are really proud of that. अपने लिए अच्छे, जो अपना unified DCPR जो हम लोगों ने लागू किया, अन्य राज्य जो है वो स्टेट भी इसका स्टडी कर रहे हैं। सब रूल एक समान कर दिया, अलग अलग किसको अभी करने का जरूरत नहीं। पहले बिल्डर लोग 1-1 इंच लड़ाते थे, अभी आप लोगों को सब छोड़ दिया हम लोग। P लाइन के अंदर बिल्कुल खेलते रहो, इंच लड़ो मत। तभी ये UD मिनिस्टर में पहले था कि मैंने कहा था MCHI, क्रेडाई, नरेडको, इनको बुलाओ,
उनको साथ में बुलाओ, उनका सजेशन लो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे 2-3 उस वक्त काम किया, 2-3 लोगों ने, जैसे चहल थे, करीर साहब थे, परदेशी भी थे, और लास्ट में गगरानी साहब के हाथ से ये पूरा हो गया। तो अगर हम नियम करते हैं, कानून करते हैं, रूल बनाते हैं, तो उसका फायदा जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो सिर्फ पेपर पे नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि ऐसा कभी डिसीजन नहीं हुआ था, और फिर उसके अंदर जो भी त्रुटियां थी, जो प्रॉब्लम थे, सब निकाल दिए, और उसका फायदा आम लोगों का हो गया। या मुंबई के जो हमारे कोली बांधव जो है, वो मूल भूमिपुत्र है, मुंबई कर है, और जो कोलीवाड़े परसों हमारी मीटिंग हो गई, उसमें सीमांकन है, गावठान है, कोलीवाड़ा रीडेवलपमेंट है, उनका जो कल्चर है, जैसे उनको गांव के जैसे वो लोग हैं, तो उनको कहा भाई देखो, कोई जोर ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करने वाले, आपका सजेशन दो, आपके जो मेंबर्स उसमें दे दो, और आप सजेस्ट करो बाबा ऐसा ऐसा करना है। क्योंकि वो मुंबई के 143 कोलीवाड़े हैं, तो उनको भी डेवलप कर रहे हैं, उनको टूरिज्म एंगल से भी उनको भी रोजी रोटी मिलना चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए। इसके ऊपर भी हमारे पालक मंत्री काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें प्रोत्साहन उनको मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और ऐसा एक मॉडल तैयार हो जाएगा कि वो उनका रहन सहन भी बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अपग्रेड होगा, वहाँ उनको रोजी रोटी के लिए साधन हो जाएगा। ये सब हमारा गवर्नमेंट तैयार कर रहा है, और सभी लोगों का, आपका स्लम का भी है, तो गवर्नमेंट का भी एम है कि स्लम फ्री मुंबई करना। इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को हमारी चर्चा हुई थी, तो उनसे चर्चा हुई थी, जो भी एक्सपर्ट है इसमें बिल्कुल आप आ जाइए, आपके एक्सपर्टीज़ का इसमें बिल्कुल उपयोग किया जाएगा। और उनको कहा तो बोले स्लम अगर है तो जैसे हमारे डेपो है, BST डेपो है, ST डेपो है, सब वो जो डेपोज है उनको तो उनकी रिक्वायरमेंट तो ग्राउंड लेवल पे रहती है, या उनको और कुछ देना है तो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है एकदम हाईटेक बस डेपो होना चाहिए। लेकिन बाद में जो हम लोग रूल्स में, जैसे स्लम होगा बाजू में, तो वहाँ रेसिडेंशियल करेंगे, तो स्लम खाली हो जाएगा, दूसरे लोगों को वो खाली जगह पे रखेंगे। ऐसे करके रोटेशन में इसमें एक बड़ा काम स्लम फ्री सिटी का हो सकता है। धारावी का आपने चर्चा किया है, 70,000 80,000 जितने भी है और लोग वहाँ पर रहते हैं। और 95 के बाद धारावी का जो पुनर्विकास योजना जो है, तो वहाँ पर 2004 तक 86 योजनाओं को सैंक्शन दी थी। लेकिन क्या हुआ है, ये रुका पड़ा है। वहाँ लैंड, रेलवे की लैंड है 45 एकर्स है, उसको लेना है, कोई प्रॉब्लम था, अभी सोल्यूशन निकल जाएगा, और अभी वापस टेंडर निकाला है। तो ये एक ग्लोबल टेंडर है, इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे, धारावी का पुनर्विकास होगा, तो उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा, साधन मिलेगा। और वहाँ छोटे छोटे उद्योग भी बहुत है, कितनी इंडस्ट्री है, बहुत काफ़ी इंडस्ट्री है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, और सरकार ने प्रायोरिटी दी हुई है उसको। और यहाँ पर जो स्वच्छ महाराष्ट्र जो अभियान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अभी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2 शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के पास हमारी सरकार ने 12,900 करोड़ का एक DPR भेजा था। आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि केंद्र सरकार ने 12,900 करोड़ का DPR सैंक्शन कर दिया, पैसे भी सैंक्शन किए, और ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान शुरू होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा था कि ये सरकार को कुछ भी फंड्स कम नहीं पड़ेंगे, ये सरकार जो है लोगों के अच्छे के लिए काम करो, राज्य का विकास करो, सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा काम करो, और केंद्र सरकार पूरी तरह आपकी मदद करेगी। वैसे वो लोग मदद कर रहे हैं, कोई सैंक्शन है, कुछ भी है तो फटाफट मिल जाती है। कई वहाँ सेंटर के मिनिस्टर है, वो हमेशा कहते हैं कि ये आपके कोई भी प्रोजेक्ट आए, प्रस्ताव आए, तो उसे हम लोग तुरंत उसको सैंक्शन देंगे। ये अच्छी बात है, और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय सभी मंत्री जी है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सरकार को मदद कर रहे हैं इसमें। और जो है सीमेंट कंक्रीट का तो मैंने बताया कि आप बड़े नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो थिकनेस है, कंक्रीट के रोड है, UTWT के रोड है, PCC जो है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है। ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है बाहर
अपने अन्य देशों में, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए हम लोग अभी 1000 किलोमीटर से अधिक मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर शहर में जो है ये कंक्रीट के रोड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, मुंबई में ही अभी 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके क्या है, पहले तो पैसे ज़्यादा लगते हैं शुरुआत में, लेकिन 20-25 साल बिल्कुल उसको टेंशन ही नहीं रहता है। जिस शहर के, जिस राज्य के रोड अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, उसका प्रोग्रेस भी अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अमेरिका जो है, उसके पूर्व राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी, उनका एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब रोड अच्छे हैं तो उसका रिचनेस है, उसकी श्रीमंती जो है रोड के ऊपर पहचानी जाती है। ये ऐसे ही काम करना है, इसीलिए हम लोग ने नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे किया। पुणे मुंबई आपको मालूम है, पहले पुणे मुंबई रोड क्या था, कोई बोलते कोई जाता ही नहीं, उसमें गाड़ी ही नहीं दिख रही थी क्योंकि एक रोड था। लेकिन उस वक्त हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि 8 घंटा 10 घंटा पुणे में लगता है जाने को, घाट जाम हो गया तो ख़त्म। तो ये गडकरी साहब उस वक्त मंत्री थे, जो MSRDC मिनिस्टर थे, जो मेरे पास भी MSRDC जब है तो नागपुर मुंबई देवेंद्र जी और हम लोगों ने मिलके किया है। अभी उसका भी उद्घाटन हो जाएगा जल्दी। पुणे मुंबई जो है अभी 2.5 घंटे में हम लोग पहुँचते आते जाते। वहाँ सर्विस इंडस्ट्री बढ़ गई, IT इंडस्ट्री बढ़ गई, रियल इस्टेट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया ना। ये क्यों हो गया, 2-2.5 घंटे में पहुँचते करके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग मुंबई गोवा जाते, अभी तो आप लोग तो रोड से नहीं जाते होंगे, आप तो डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं ना। रोड से जाते हैं उसको बहुत तकलीफ होती है, खड्डे। तो वो नेशनल हाईवे के पास रोड है, लेकिन अभी गडकरी साहब उसको बना रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बराबर नहीं मिला तो उस काम का प्रॉब्लम होता है। तो अभी वो भी रोड बनेगा, लेकिन MSRDC एक मुंबई सिंधुदुर्ग मतलब मुंबई गोवा एक कोस्टल हाईवे जो है वो सिंगल है, उसको 2 लेन का करेगी। मतलब टूरिज्म बढ़ेगा। जो बीचेस है, इतने अच्छे बीचेस है अपने महाराष्ट्र में, कोकण में, तो वहाँ टूरिज्म डेवलप करने के लिए बहुत पोटेंशियल है, स्कोप है, और उसे भी हम लोग कर रहे हैं। और डायरेक्ट मुंबई सिंधुदुर्ग मतलब गोवा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड जैसे नागपुर मुंबई और मुंबई पुणे के जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, लोग काफ़ी कम समय में पहुंच जाएंगे, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सब ध्यान देखते हुए ये पूरे महाराष्ट्र में 5000 किलोमीटर के हम लोग एक्सेस कंट्रोल रोड बना रहे हैं, 5000 किलोमीटर के। तो इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा, कहीं से भी कहीं लोग जा सकते हैं। वहाँ अभी जैसे नागपुर मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई नागपुर जो है इसके वजह से एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। वो वहाँ इंडस्ट्री जाएगी, जो नागपुर में लास्ट में जाएगा उसको ज़्यादा फैसिलिटी देंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ अभी कोई इंडस्ट्री जाती नहीं, लेकिन ये रोड के वजह से जाएंगे। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। ये पोल्यूशन की बात है, स्वच्छता है, ये जो चैलेंजेस है अपने सामने, ट्रैफिक की जाम की समस्या है, इसे भी हमको कम करना है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2-4 प्रोजेक्ट का भी मैंने पहले नाम लिया है। जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए भी हम लोग, सरकार उसको प्रायोरिटी दे रही है। मुंबई में भी कई लोग हैं, MMRD है, MSRDC है, म्हाडा है, मुंबई महापालिका है। तो इसलिए मुंबई क्या है, काम चालू है सब अभी। इसलिए श्रीनिवासन को हम बोला है कि काम करते वक्त लोगों को परेशानी न हो, इसका ध्यान अपने को रखना है। तो आप सब लोगों को यही मेरा कहना रहता है कि अपने को लोगों को सहूलियत देने के लिए थोड़ा अपने काम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज मुंबई में इतने बड़े प्रोजेक्ट चालू है, शुरू है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर कंप्लीट होने के बाद इतना फ़ायदा हो जाएगा लोगों। खाली मैं टेक्नोलॉजी का बात कर रहा हूँ, जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, नहीं तो बाहर के देश में अच्छा काम चल रहा है, हमारे देश में अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ मुंबई में इतना फास्ट काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी काम करते हैं। श्रीनिवासन एक बार मैंने फ़ोन किया तो 7:30 बजे साइड पे थे। तो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी जो है काम करने वाले हैं, और सभी लोग हैं एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर जो है ये एक चैलेंज है अपने को, निश्चित रूप से चैलेंज है।
और उसे हमको सबको मिलके स्वीकारना है, क्योंकि 2052 तक इसकी जो पॉपुलेशन है ये 45 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसमें स्लम में 60% लोग स्लम में रहते हैं, और हमें एक ही है स्लम फ्री सिटी, स्लम फ्री मुंबई। और इसलिए ये जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, इसे भी हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग स्टेट लेवल पे भी डिसीज़न लिया है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी जो ऑफिसर्स हैं, उनको कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ करते हैं कॉरपोरेशन लेवल पे, उनको किसी बात की वहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंट्रलाइज उनको सपोर्टिव सिस्टम भी करने का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। तो ये सरकार के माध्यम से एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाया है हम लोगों ने, और इसलिए आप सभी लोगों का इसमें योगदान आवश्यक है। लेकिन अपने को मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, और इसमें सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी, कॉरपोरेशन को सपोर्ट करेगी, और इसमें सभी लोगों ने अपना हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कंक्रीट रोड हो गया, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा अभी मुंबई में। अभी आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे, मैं जैसे कहा है सरकार बदल गई है, मुंबई भी बदलेगी, ज़रूर मुंबई भी बदलेगी। और फिर एक बार कंस्ट्रक्शन टाइम्स जो है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दिन भर के सेशंस में जितने भी आपके सुझाव है, कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसका कॉग्निजन सरकार ने लिया हुआ है, और निश्चित रूप से उसमें सरकार इस कार्य के लिए आपका अभिनंदन करती है, आपको धन्यवाद भी देती है। आगे भी ऐसा ही काम शुरू रखो, ये शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yes, thank you so much. Give a huge round of applause for our Honorable Chief Minister of Maharashtra for addressing us of the conference. Well, ladies and gentlemen, welcome to Construction Time BAM Awards 2022. I, myself, Riddhi Varia, will be the host of this evening, and this event is organized by the ARK Events and Media. BAM Awards honor the outstanding personalities, projects, and innovative building materials that reshape that real estate, architecture, and project management practices in India. Conceptualized and instituted by ARK Events and Media Group, the BAM Award has carved a niche and has been has appreciated among the builders, architects, and building material manufacturers. Yes, ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Construction Times and the BAM Awards 2022. And here we start with the evening. We waited for the first category of awards. The award in the category of Best Mixed Use Development Project Award of the Year goes to Nexus Ahmedabad 1, Nexus L&T, Nexus Seawood, and Nexus Western Icon by Nexus India Retail Management Services Private Limited. Ladies and gentlemen, may I call upon Mr. Rajnarayan Sahu, the team head, to come up on the stage and receive the honor. And now we move on to the next category of the awards, honoring the best in sector innovation. Contribution to real estate sector Best Trusted Brand of the Year award goes to Product Tata Viron LRPC by Tata Steel Limited. May I call Mr. Anurag Pandey, Executive in Charge, Global Wires Division, to come up on the stage and receive the honor. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Anurag Pandey? Thank you so much. Contribution to real estate sector Best Innovative PEP Project of the Year award goes to International Corporation and Convention Center, Rudraksha Varanasi by Intraj Building Products Private Limited. Ladies and gentlemen, may I call upon Mr. Rinku Kevadia, AVP Sales and Marketing, to come up on the stage and receive the honor. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Rinku Kedia. Contribution to real estate sector Best Innovation in Paints and Coating of the Year award goes to Product Waterford Putty by Berger Paints India Limited.
may I call upon Mr. Nirmalaya Kumar, Senior General Manager, to come up on the stage and receive the award. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Nirmalaya Kumar? Now, we move on to the third category of awards. The winner in the Best Architecture Commercial Project of the Year is Candor Tech Space by Incubis Consultant India Private Limited. May I call Architect Rohit Krishnan Gulati, Founder Director, to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Architect Rohit Krishnan? The Best Architectural Mixed-Use Development Project of the Year award goes to Vegas Mall, New Delhi by Bentel Associate International. May I call Architect Vrinda Shetty, Director, to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Architect Vrinda Shetty? The winner in the Best Architect of the Year is Architect Anish Kemkar, Director of AKA Consultants India Private Limited. May I call Architect Anish Kumar to come up on the stage and receive the honor. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Architect Anish Kemkar? The award for the Best Architect of the Year goes to Architect Dikshu C. Kukreja, Managing Director, CP Kukreja Architects. May I call Architect Naresh Sharma on behalf of CP Kukreja Architects to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for them? Now, we move on to the fourth category of award, that is Best Builder of the Year. The Emerging Developer of the Year award goes to Raymond Realty. May I request Mr. Sandeep Maheshwari, Chief Operating Officer, to come up on the stage and receive the honor. The award in the Best Builder of the Year category above 1,500 crore turnover goes to Shobha Limited. May I request Mr. Devendra Dundlonia, Regional Head Gujarat, to come up on the stage to receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Devendra? Now, we move to the next category of awards. The Outstanding Public Service During COVID Award goes to Dr. Shashank Mehendle and Associates. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Dr. Shashank Mehendle? The winner in the Best Builder of the Year category between 500 crore to 1,500 crore turnover is Purvankara Limited. May I call Mr. Sanjay Daga, COO, West Purvankara Limited, to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Sanjay Daga? The award in the category of Best Residential Project of the Year goes to Vadva Pristine by the Vadva Group. May I call Mr. Bhaskar Jain, Chief Business Officer, to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Bhaskar Jain? The award in the category of Best Commercial Project of the Year goes to Suratwala Mark Plazo by Suratwala Business Group Limited. May I call Mr. Jatin Danshuklal, Suratwala Managing Director and Chairman, to come up on the stage and receive the honor. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for all the award winners? Now we move on to the next category of the awards, Best CEO of the Year, Capital Good Industry. The award goes to Mr. Amit Gosin, Managing Director, Kone Elevators India Private Limited. May I call Mr. Amit Gosin to come up on the stage and receive the honor. Moving on to the next category of the awards, Best CEO of the Year,
year, the award goes to Mr. Surendra Hiranandani, founder and managing director, House of Hiranandani. May I call Mr. Surendra Hiranandani to come up on the stage and receive the honors. Now, we move on to the next category of the award, that is Stellar Achievement Award. Outstanding contribution towards real estate sector goes to Dr. Sanjay Mukherjee, IAS, Vice Chairman and Managing Director, Development Corporation. Let's welcome the man of honor, Dr. Sanjay Mukherjee, on the stage, please. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? Ladies and gentlemen, now we move on to the last award of the evening and a very special category of award, Lifetime Achievement Award, and the honor goes to Shri Jay Prakash Goyal, the founder and chairman of Goyal Ganga Group. Can we have, ladies and gentlemen, we request all of you to give a standing ovation in respect of Jay Prakash ji. Okay, ladies and gentlemen, may I also request all the award winners across categories to join in for a group photo. Ladies and gentlemen, put your hands together for all our award winners. Yes, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for all the award winners? Have a great evening and take care of yourself. This is Anchor Riddhi Varia signing off. Thank you so much.